Okay. Now the energy level diagram, and we arrange the different subcells in the increasing order of these subcells. And the K means first cell. First cell has only one S. So one S. Then L has 2S and 2P. Okay, LS has 2S and 2P, two subcells. So first one is 2S and 2P. 2S and 2P. But there is a very small difference or slight difference between the energies of 2S and 2P. So you can write the 2S and 2P like that. इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2S and 2P. ये इतनी एनर्जी का केवल डिफरेंस होता है 2S and 2P. Now the M has the 3S, 3P and 3D. So 3S is here, 3P is slightly more, and 3D has the more energy, like as the fourth cell. What? Like as the fourth cell. So 3D will go to the this. 3D will go to the fourth orbit, means N. Fourth orbit means N. So 3D and fourth orbit has the 4S also. 4S and 3D has the very small difference between the energies of them, right? So 4S and 3D, and again you can make the different cells 4S, 3D, 4P like S. इस टाइप से आप क्या होगा एनर्जीज को आप देख सकते हो, राइट? So according to this order we can arrange the different subcells like that. Okay, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, right? Here the 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Now the 4S, 3D. Okay, 4S, 3D. Now ये आपको दिखाई पड़ रहा है? 3D दिखाई पड़ रहा है? Or not? No sir. No. Okay. 3D sir. Okay. 4S के बाद यहाँ से आ जाएगा ये, इसको ऑर्डर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको आप करते जाओ. उसके बाद यहाँ से 3D के बाद 4P मींस क्या करना है, 3 के बाद संख्या को इंक्रीज करना है और D के नीचे वाले सबसेल्स को आप लिखते चलना है. 4P देन 5S, अगेन 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4D, 5P एंड 6S. अब क्या बचा, अब आपका आएगा F. So the 4F, then 5D, then 6P and then 7S and so on. इसी टाइप से ये ऑर्डर क्या है, ये इस ऑर्डर को आप आसानी से लिख सकते हो. This is the energy order and these are arranged in the increasing order of their energies. Means क्या वो subcells energies. अब आपको means you know very well that the means SPDF have the maximum electrons of 2, 6, 10 and 14 in their subcells, right? इनकी क्या है, ये मैक्सिमम मींस संख्या है इलेक्ट्रॉन्स की. तो आप इसको 1s2 डाल सकते हो, 2s2 डाल सकते हो, p पे डाल दो 6, 2, 6. जहां आपको दिख रहा है s वहां 2 डाल दो, जहां p दिख रहा है वहां डाल दो 6, जहां पर d दिख रहा है वहां डाल दो 10 और आपका जहां पर f दिख रहा है वहां डाल दो 14. And this energy order, okay, write down this point now, and then after that we will rub it. Okay, इसको रब कर दें.
इसको रब कर दें। नो सर। कह रही स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। हो गया? चलो नाउ दिस एनर्जी लेवल डिपेंड अपॉन द सम फैक्टर्स, okay, like that the first one is nuclear charge. First one is nuclear charge. Nuclear charge means what? The attraction force exerted by the protons present in nucleus, which is called the nuclear charge. Second one is principal quantum number. Principal quantum number की क्या करती है, ये इसको क्या होगा, अफेक्ट करेगी. एंड द सेकंड वन इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर लेवल. ओके, इन लोअर लेवल. ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मींस जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था उसके अंदर ये इसको अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर चार्ज. क्या होगा, मींस जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पड़ेगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, वो उतना ही न्यूक्लियस के क्या होगा, मींस आप कह सकते हो कि पास होगा, मतलब नियर रहेगा. जैसे सपोज करें हम कि ये आप अब बात कर रहे हैं, यहाँ पर 1s था, यहाँ पर 2s और 2p था. तो देखिए मींस ये अपना 1s एंड 2s है, तो 1s एंड 2s की एनर्जी में काफी डिफरेंस है. 1s इज means you can say that the 1s is closer than 2s to this nucleus. इस न्यूक्लियस से क्या होगा, 1s पास में है, तो जो इफेक्ट पड़ेगा न्यूक्लियस का वो आपको 1s के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, उसकी एनर्जी भी कम होगी. राइट, नाउ द पॉइंट नंबर 2 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, and these electrons has the in k and these have the l. So the energies of the principal quantum number is energy order of this k, l, m and n and o, like that. इस टाइप से क्या होगा, ये इसकी एनर्जी लेवल होगी. ओके, सो ये एनर्जी लेवल इसका ऑर्डर होगा. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर k has the at least energy, then l, then m, then n, then o. ओके, तो आपको समझ में तो आपको क्या होगा, किसी तरीके पर समझ जाना चाहिए कि जब आप एनर्जीज को आप देखते हैं तो मींस क्या है, जब फर्स्ट सेल रहेगा तो उसकी एनर्जी कम रहेगी, सेकंड सेल वाले की एनर्जी उससे ज्यादा रहेगी. सेकंड सेल में जो भी सब सेल्स हैं उसकी एनर्जी में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए 2s से ज्यादा 2p का होता है. ठीक है, नाउ लास्ट बोर एंड बरी रूल, बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. इस रूल्स के आधार पर आप क्या होगा और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बोर एंड बरी रूल. चलिए, बोर एंड बरी रूल. It has two parts. Number one part is, okay, number one part is for the means if same value of n are present, then the smaller value of L will be filled first. ध्यान रखना भाई इस लॉ को कि आप ये समझें कि यदि आपके पास सेम n की वैल्यूज है, आपको पता है कि k, l, m, n की वैल्यू को तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यदि 2s और 2p की बात करें, 3s और 3p की बात करें, राइट,
तो इनमें आपको यदि ये n की वैल्यू यदि पहले आपको देखनी है वैल्यू ऑफ n, ओके, विच इज लेस, देन इट विल बी फिल्ड फर्स्ट, उसको पहले भरा जाएगा, उसको क्या होगा पहले भरा जाएगा, राइट। नाउ बट इफ द वैल्यू ऑफ n is same, then the subcell which have the least number of the value of L will be filled first. Okay, that is the value of small l for the s के लिए क्या होगी वैल्यू, इसके लिए s की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए s की वैल्यू क्या होगी बोलो, इसके लिए s की वैल्यू 0 होगी, तो इसके लिए सॉरी s के लिए l की वैल्यू 0 है और p के लिए l की वैल्यू कितनी है, इसके लिए 1 है, तो जिसकी वैल्यू लेस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, ठीक है। तो इट मींस व्हाट, दैट 2s विल बी फिल्ड फर्स्ट, तो 2s को पहले लिखेंगे, 1s 2s 2p इसी टाइप से आगे रखेंगे, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज if the value of n, ये पॉइंट आपका पहले होना चाहिए, वैल्यू ऑफ n will be less then it will be first, it will be filled first, okay। मतलब है कि जिसके लिए क्या हुआ है n की वैल्यू सबसे कम है उसको आप क्या करोगे पहले फिल करोगे, तो इसको 1 कर दो, इसको कर देना 2, राइट। व्हाई, बिकॉज जब आप पहले n को पढ़ लेंगे तब तो आप पूछेंगे ना, तो क्या होगा n की वैल्यू सबसे कम रहेगी उसको पहले पढ़ देना, यदि n की वैल्यू इक्वल है सेम है तब आप क्या करोगे l की वैल्यू, राइट। सो मींस these are the some specific rules, okay। now the electronic configuration, इसको बता दे भाई, इसको रब कर दे, इसको रब कर दे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, how can we arrange electrons in the cells of cells like that, okay, it is called the electronic configuration. I am writing one example like 2px and 1, 2px and 1, okay। now at first we will study the means what these points are referred, what these points are indicating, okay। चलो, first one is n for the value of n, क्या है ये जो 2 है 2 दिखा रहा है आपको n को, n means what, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि कौन सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये n, यहां पर 2 दिया, इट मींस इट इज सेकंड क्वांटम नंबर और इट इज प्रेजेंट इन सेकंड सेल, ये आपको देखना है, राइट। p क्या बता रहा है भाई, p क्या बता रहा है, p will tell about the सबसेल, कौन से सबसेल में है, कैसी इसका लेवल है, कैसा इसका आप कह सकते हैं कितने प्लेन पे है, ओके। हाउ कैन यू से दैट मींस हाउ मेनी प्लेन्स आर प्रेजेंट in this subsets, in this point total, how many levels, how many planes, how many axes are there, how many axes are 2 4, no level, I am asking about the only plane पे कितने प्लेन पे है, 1, only 1, यस। तो p के लिए l की वैल्यू जो होगी वही उसका प्लेन और एक्सिस होगी, सो इट हैज द l की वैल्यू 1, राइट। अब आइए आपका ये 1 क्या बताता है, ओके, दिस 1 इंडिकेट
ये बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2, 3 है तो 3। ये इस पार्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम। यदि यहां पर x दे दिया, ध्यान रखना भाई, यदि यहां पर ये x दे दिया है तो समझ जाना है कि ये x means this subcell indicates the specific orbital present in the specific axis। एक्सिस इसके अंदर होते हैं 3, आपको पता है 3 एक्सिस हो सकते हैं, x पे, y पे, z पे हो सकता है। तो ये जो आपका px है, px means it is present in x axis and you can draw the figure of the electrons like that, 1 2 3। this is the px, this is the pz, this is the py। z को हमेशा बीच में लेना। so the pz is this, so px means इसकी बात कर रहे हो, ये है px। तो px has only how many electrons? 1 electron। so px has only 1 electron, इसलिए ये मैंने बनाया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका p है, इसलिए मैंने कितने बनाए? 3 सबसेल बनाए। यदि ये क्या होता d होता तो कितने बनाते? d होता तो कितने ऑर्बिटल बनाते? 5। और यदि जब f होता तो कितने बनाते? 7 बनाते, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिनको कि आप क्या है इजीली आप समझ सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, ओके। px मींस ऑर्बिटल, x एक्सिस में ऑर्बिटल है, और ये सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, ओनली फॉर दिस, केवल इसकी बात कर रहे हैं अभी यहां। यदि केवल 2p देता तो हम तीनों की बात करते हैं, केवल 2p देता तो हम तीनों में से जहां इलेक्ट्रॉन होगा उसकी बात करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन 2 होते तो क्या करते? पहले यहां फिर यहां, पहले यहां या इसी में ही हम दोनों भर देते, इसी में ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते क्या? चलिए, टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स वी विल स्टडी अबाउट द different laws of writing the correct electronic configurations, right? Number 1 is first law is the Ampère principle. First law is the Ampère principle, okay? I am writing this Ampère principle. Ampère principle. Okay. According to this principle, and we will arrange these subcells or orbitals in the increasing order of energies, okay, which you have studied in last point, Bohr and Bury rules. So the Bohr and Bury rules are used in this Ampère principle. Bohr and Bury rule जो आपने अभी भी पढ़ा है, Bohr and Bury rule सेम पार्ट को आप इसके अंदर लगा दोगे, Bohr and Bury, ओके। इसको तो रिपीट करने के लिए जरूरत है, अब ये भी बताया मैंने, बोलो। ठीक है, चलिए एक बार और इसका एक पॉइंट बता देते हैं। क्या होगा आपका? these orbitals with the order of increasing orders of the n plus n, increasing order of n plus l में आप इसको रखोगे, increasing order of the value of n plus l। कोई भी सबसेल आपके पास है, उस सबसेल के लिए n और l की वैल्यू निकालो, दोनों को ऐड कर दो, जो वैल्यू मिनिमम रहेगी उसमें आप पहले इलेक्ट्रॉन डालोगे इसके अनुसार, राइट। एक अब फॉर एग्जांपल 3s and 3p, ओके। इसके लिए n की वैल्यू 3, इसके लिए p की वैल्यू 0, सॉरी इसके लिए क्या है, इसके लिए स्मॉल n की वैल्यू 0, देन द टोटल ऑफ दिस
is 3 plus 0 equal to 3. 3 plus 0 equal to 3. And the value of this 3 and the value of L from this is the 1 and 3 plus 1 equal to 4. Okay. इन दोनों में से क्या है 3 is less, so the electron will fill in 3s first. 3s में पहले इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इसलिए इसको हम ऐसे करते हैं 3s की एनर्जी क्या 3p से कम है। कभी कभी ऐसा होता है कि n प्लस l की वैल्यू इक्वल हो जाती है। कभी कभी क्या होगी n प्लस l की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो वहां आप क्या करोगे, इक्वल कैसे होगी देखिए। पॉइंट नंबर 2 में देख रहे हैं आप, पॉइंट नंबर 2 में देख रहे हैं इफ द n प्लस l आर इक्वल then electron will fill in lower value of n. यदि n प्लस l की वैल्यू सेम है तो उन दोनों में से n की वैल्यू किसकी मिनिमम है वहां आप इसको डालो, वहां इसको आप डालो। ठीक है, पहले जो था बोरेन-बरेकर रूल वो उन्होंने दिया था किसके लिए, वो था आपका केवल जो एनर्जी लेवल को ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया था, एनर्जी किसकी ज्यादा कम होती है। और ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग का सिस्टम है जो कि हम क्या कर रहे हैं अपवो प्रिंसिपल के अंदर इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है ना, बोलो टेल मी। यस सर। ओके, अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं जिनके लिए n प्लस l की वैल्यू इक्वल हो। ओके, टेल मी एनी एग्जांपल व्हिच हैव द वैल्यू ऑफ सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l। 4s and 3p। ओके, वेरी गुड। आप इसको यहां लिख रहे हो, इसको 4s has the 4 plus 0 is 4 value, n plus l की वैल्यू 4 and 3p has 3 plus 1 4 also, it has also 4. So if the n plus l की value, if the value of n plus l is equal, then electron will fill in the lower value of n। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 4, इसके लिए वैल्यू कितनी है